Hello guys, hope you all are fine at home. I'm Nishu Gautam. Guys, today we are going to discuss chapter how do organisms reproduce. Okay. So firstly, we should know the content which we have to cover in this video. So what is reproduction? Types of reproduction, types of asexual reproduction, and last one, tissue culture. Okay, so first thing is that what is reproduction? The production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction. The process of reproduction ensures continuity of life on earth. Reproduction, as the word suggests, re plus प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, आपके नए ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट होती है ओल्ड ऑर्गेनिज्म से, दैट वी कैन से फ्रॉम पेरेंट्स. एंड जो रिप्रोडक्शन है ये हमारे लिए मस्ट है ताकि जनरेशन टू जनरेशन हमारी क्या हो सके, पॉपुलेशन डेवलप हो सके. So types of reproduction, there are two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So first is asexual reproduction. The production of new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes is called asexual reproduction. For example, Hydra, amoeba. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और क्या होता है, नई डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल्स ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपके बोथ पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमेट्स के फ्यूजन से क्या होता है, आपका न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज फ्यूजन, सेकंड बर्डिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ फ्रेगमेंटेशन, sixth vegetative propagation. So first, fission. A unicellular organism splits to form two or more new organisms. फिजन के अंदर क्या होता है, आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. In case of binary fission, the parent organism splits or divides to form two new organisms. In this parent organism divided into two daughter cells. Okay. Next is multiple fission. In case of multiple fission, the parent organism divides into so many new organisms. It may occurs in unfavorable conditions. Okay, when suitable conditions are not available for a parent organism. Second point is budding. In budding, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud which detaches and becomes a new organism. Example, Hydra and yeast. इस केस में क्या होता है, आपका जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें बड ग्रो कर जाती है और जैसे ही वो बड ग्रो करती है वो मैच्योर होती है और कुछ टाइम के बाद वो बड पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाती है और उस बड से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, जैसा कि आपको स्लाइड में शो कर रखा है. ये हाइड्रा के अंदर आपको शो किया गया है. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spore case of plant bursts, then the spores spread into air. When these airborne spores land on food under favorable conditions, they germinate and produce new plants. स्पोर फॉर्मेशन के केस में क्या होता है,
देखिए इस टाइप से आपके स्पोर्स जो हैं वो पैक्ट होते हैं, और जैसे ही ये स्पोर केस बर्स्ट हो जाता है तो ये स्पोर्स एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तभी ये ग्रो कर जाते हैं। ओके, ये आपका होता है मोस्ट ऑफ फंजाई लाइक राइजोपस और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर। नेक्स्ट है रीजनरेशन। The process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को हमने डिवाइड कर दिया है 3 पीसेस में, एंड फ्रॉम ऑल 3 पीसेस न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड। ओके, next is fragmentation, the breaking up of a body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation. Examples are Spirogyra and sea anemones. ओके, देखिए फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पीसेस में डिवाइड हो जाती है, और वो जो पीसेस या फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. In vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants like stems, roots and leaves without the help of any reproductive organs. वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से क्या होता है, आपके नए प्लांट्स ग्रो करते हैं पुराने प्लांट के पार्ट से। वो पार्ट आपका स्टेम भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकती हैं और लीव्स भी हो सकती हैं। ओके, सो ये देखिए लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स, एंड ये जो बर्ड्स हैं इनकी हेल्प से फिर आपका क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। एंड दिस इज ट्यूबर इन द पोटैटो, बर्ड इज एमर्जिंग एंड फ्रॉम दिस बर्ड न्यू प्लांट विल बी डेवलप्ड. नाउ artificial propagation of plants. The process of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation. Artificial propagation में क्या होता है, एक ही प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो ये हम 3 मेथड से कर सकते हैं, दैट आर कटिंग्स, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. So now we have to discuss them one by one. First is cuttings. A small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called a cutting. आप किसी भी प्लांट का कोई पार्ट ले रहे हैं, उसको शार्प नाइफ से कट कर दीजिए और उसे हम कटिंग बोलेंगे। किसी भी प्लांट का कोई पार्ट जिसे हम रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कटिंग. जो कटिंग प्रोसेस है वो आपका रोज, बोगेनविले, क्राइसैंथेमम, ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास एंड कैक्टस, ये सभी जो प्लांट्स हैं ये आपके कटिंग्स प्रोसेस से क्या किए जा सकते हैं, जर्मिनेट किए जा सकते हैं. सो ये देखिए हमने एक कटिंग को डीप भरी सॉइल में क्या कर दिया है, बरी कर दिया है, और जो कटिंग है आपकी वो विद बड होनी चाहिए. उससे क्या होगा, फिर आपका जो रूट्स और शूट्स हैं वो डेवलप कर जाएंगे और उससे आपका नया प्लांट ग्रो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कटिंग ऑफ अ पेरेंट प्लांट. सो नेक्स्ट इज लेयरिंग. In this method, a branch of a plant is pulled toward the ground and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip of a branch exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part of a branch buried in the soil. The branch is then cut off from the parent plant. The part of the branch which has developed roots grows to become a new plant. Examples: jasmine, strawberry, lemon, guava and many ornamental plants.
Ornamental plants are those plants which are grown for decoration purpose. So देखिए लेयरिंग के केस में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट प्लांट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रांच को अंडर द सॉइल बरी कर देते हैं और उसमें क्या होता है फिर कुछ टाइम के बाद आपकी रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और जैसे ही रूट्स ग्रो कर जाती हैं आपकी, तो हम उस ब्रांच को उस पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं और उसे कट कर देते हैं। इससे फिर क्या होता है, आपका एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच द स्टेम cut stems of two different plants, one with roots and other without roots, are joined together in such a way that the two stems join and grow as a single plant. इसमें क्या होता है आपका, ये देखिए एक प्लांट का दो प्लांट्स ले जाते हैं, उनके अलग अलग पार्ट ले जाते हैं। एक प्लांट का हमें विद रूट वाला पोर्शन लेना होता है, एक का विदाउट रूट लेना होता है। ओके, सो द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टोक। जिस पार्ट की हमने रूट्स भी ली हैं उस पार्ट को हम स्टोक कहते हैं, और जिस पार्ट की हमारे पास रूट्स नहीं होती उसे हम शियोन कहते हैं। जो आपकी फ्रूट्स हैं इस मेथड से ग्रो किए जाते हैं, दैट आर एप्पल, पीच, एप्रिकॉट एंड पियर ट्रीज। ओके, सो ये देखिए इसमें आपको शो कर रखा है, एक शियोन है आपका, एक स्टोक है, इसको क्या कर दे रहे हैं, जॉइन टुगेदर, जिससे क्या होगा फिर आपका न्यू प्लांट ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। The production of new plants from a small piece of plant tissue or cells removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution is called tissue culture. Tissue culture में हम क्या करते हैं, किसी प्लांट को ग्रो करना है तो उसमें हम किसी प्लांट के प्लांट टिश्यू या फिर सेल्स ले लेंगे ग्रोइंग टिप से, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है आपकी, और उसे हम एक प्रॉपर सूटेबल मीडिया में रख देंगे जिससे क्या होती है, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। सो इसके एग्जांपल्स रहेंगे आपके ऑर्चिड्स, डहेलिया, कार्नेशन। जो आपका टिश्यू कल्चर होता है इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। सो अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर फॉर टिश्यू कल्चर। टिश्यू को कल्चर कराने के लिए कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू बीइंग टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट। हमें एक छोटा सा पार्ट लेना है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। प्लांट टिश्यू ग्रोज टू फॉर्म कैलस। प्लांट टिश्यू को हमें ग्रो करवाना है, कैलस फॉर्म हो जाए। कैलस क्या होती है आपकी, एक शेपलेस लंप ऑफ मास, एक तरीके से जिसकी कोई शेप नहीं होती, लंप होता है सेल्स का। कैलस डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स। जो कैलस होगा आपका उसके अंदर रूट्स और शूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, जिससे क्या होगा फिर बहुत सारे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, और इन प्लांट्स को फिर हम क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं पॉट्स में या फिर सोइल में। सो ये देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू के अंदर से प्लांट्स के अंदर से प्लांट टिश्यू ले रहे हैं और फिर उसे हम ग्रो करवा रहे हैं। फिर कैलस की रूट्स और शूट डेवलप हो रही हैं और इनसे फिर प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये प्रोसीजर है आपका टिश्यू कल्चर का। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। In our next video, we are going to discuss about sexual reproduction. Till then, bye bye.